شہر نامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے پنجاب میں سال 2025 کا پہلا پولیو کیس ڈکلیئر کرنے پر وزیر صحت خواجہ عمران نذیر اور سیکرٹری صحت نادیہ ثاقب نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے لاہور سے رانا عقیل کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ پنجاب سے سال 2025 کا پہلا پولیو کیس ضلع منڈی بہاؤدین سے رپورٹ ہوا۔ پولیو سے متاثرہ بچی 8 سالہ مہنور تحصیل ملکوال ضلع منڈی بہاؤدین کی رہائشی ہے۔ بچی پر فالج کا حملہ 10 فروری 2025 کو ہوا، جس پر محکمہ صحت کی ٹیم نے بچی کا معائنہ کیا اور متاثرہ بچی مہنور کا پخانہ ٹیسٹ کے لیے 14 فروری 2025 کو NIH اسلام آباد بھجوایا گیا۔ ٹیسٹ سے مہنور کو پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اس سے پہلے 2024 کو سیف اللہ نامی بچے کو پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ WHO کی جانب سے ان دونوں بچوں کو پولیو وائرس کی تصدیق کے بعد پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں اور ایک منفی تاثر جا رہا ہے۔ WHO کی جانب سے 8 سالہ مہنور پر پولیو کیس ڈکلیئر کے بعد محکمہ صحت کی جانب سے 8 سالہ مہنور کی فزیکل فٹنس دیکھتے ہوئے 6 سینئر ترین میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق مہنور پر پولیو کیسز کے کوئی اثرات ظاہر نہیں ہیں اور بچی بالکل فٹ ہے، جس پر وزیر برائے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ خواجہ عمران نذیر اور سیکرٹری صحت نادیہ ثاقب نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ WHO کی جانب سے جن 2 بچوں پر پولیو کیسز ڈکلیئر کیے ہیں وہ بالکل فٹ، صحت مند اور دوڑ بھاگ رہے ہیں۔ ان دونوں بچوں کی ویڈیوز بھی میڈیا نمائندگان کو دکھائے گی۔ WHO نے ایک کیس جو ہے اس کو پولیو کیس کے طور پہ جو ہے وہ رجسٹر کر لیا تھا اور وہ بچہ جو ہے چکوال کا رہائشی بچہ تھا، اور جب میں اس بچے سے ملنے گیا تو ماشاءاللہ وہ CMH میں داخل تھا۔ اس بچے کی میں نے خود سے ویڈیو بنائی اور وہ بچہ الحمدللہ آج فٹ بال بھی کھیلتا ہے۔ کل رات کو ایک رپورٹ ہوئی کہ ایک بچی جس کا نام مانور ہے اور اس کا نام سیف اللہ تھا، بچے کا 6 سال کا تھا، وہ مانور جو ہے وہ تقریباً 8 سال سم تھنگ اس کی عمر ہے۔ اس بچی کے متعلق جو ہے وہ اس کو کچھ ہلکی پھلکی وہ بیمار ہوئی اور اس کو جو ہے وہ ہمارے نزدیکی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہے وہ لے جایا گیا اور اس بچی کے کچھ ٹیسٹ ہوئے تو اس کے بعد اچانک ہمیں رات یہ بتایا گیا کہ نہیں، اس بچی کو پولیو کیس میں شامل کر لیا گیا ہے WHO کی طرف سے۔ تو ہمارے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ تھا۔ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے فوری طور پہ اس کا نوٹس لیا، مجھے اور سیکرٹری ہیلتھ کو ہدایت کی کہ آپ فوری طور پہ اس کیس کو ایگزامن کریں، اس کی انکوائری کریں اور یہ بتائیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو سیکرٹری صاحبہ نے رات ہی تھوڑی دیر کے بعد 6 ماہرین پر مشتمل ایک اسپیشل ٹیم جو ہے وہ ترتیب دی، جس میں امراض بچگان جو ہیں وہ سارے شامل تھے۔ انہوں نے فزیکلی آج اس بچی مانور کو ایگزامن کیا اور ایگزامن کرنے کے بعد انہوں نے جو رپورٹ دی ہے وہ فزیکلی اس کے اندر پولیو والی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فزیکلی۔ اور جو پہلے بھی ہمیں شک تھا کہ GB سنڈروم کا کیس ہے، تو مجھے اس پہ بھی شک ہے کہ یہ GB سنڈروم کا کیس ہے، لیکن چونکہ WHO کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں، ان کے اپنے پروٹوکولز ہیں، وہ میں نے پہلے بھی ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر ایک بچے کو پولیو ہو گیا ہے تو خدارا ہمیں یہ بتا دے کہ وہ بچہ فٹ بال کیسے کھیل رہا ہے۔ خواجہ عمران نذیر کا مزید کہنا تھا ان کیسز پر WHO سے ریویو بھی کروائیں گے اور ریویو پٹیشن بھی دائر کریں گے۔ WHO کو اپنے پروٹوکول اور اپنی گائیڈ لائن دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کیسز سے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا عقیل، میٹرو 1 نیوز، لاہور۔ ٹنڈو محمد خان میں شجرکاری مہم 2025 کا افتتاح کر دیا گیا۔ ٹنڈو محمد خان میں ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے شجرکاری مہم 2025 کا باقاعدہ افتتاح ڈپٹی کمشنر شاہزیب شیخ نے پیپلز پروگرام اسکول میں کیا۔ اس موقع پر پیپلز پروگرام اسکول کے پروجیکٹ ہیڈ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ٹیم، طلباء، اساتذہ اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب کے دوران شرکاء نے مختلف اقسام کے درخت اور پودے لگائے، جن میں بادام، مورنگا، کنیرا، نیم،
जामुन और सुरेश शामिल थे। इस मौके पर तलबा ने भी भरपूर जोश खरोश का मुजाहरा करते हुए शजरकारी में हिस्सा लिया और दरख्त लगाए। इस मौके पर अपनी डिप्टी कमिश्नर टिंडो मोहम्मद खान शाहजेब शेख ने खिताब करते हुए कहा, मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है और इसके असरात से बचने का वाहिद हल ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना है। दरख्त ऑक्सीजन पैदा करते हैं, दर्जा हरारत को कंट्रोल करते हैं और कुदरती माहौल को मुतवाज़न रखते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। हमें चाहिए कि हम सब शजरकारी को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। इस मौके पर रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि तमाम स्कूल, तालीमी इदारों और अवामी मकामात पर शजरकारी की सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी ताकि ये पैगाम आम होकर दरख्त हमारी बका के लिए नागुज़ीर है। इस मुहिम के दौरान 310 दरख्त लगाए गए जबकि 700 मजीद पौधे तकसीम किए गए। इन पौधों में न सिर्फ सायेदार और फलदार दरख्त शामिल थे बल्कि फूलों और आराइशी दरख्तों के पौधे भी तलबा और दीगर शुरा में तकसीम किए। तलबा को हिदायत दी गई कि वो इन पौधों की देखभाल करें और शजरकारी की इस मुहिम को मजीद फ़रोग़ दें। सादिकाबाद के शहरियों की बात करेंगे जिनका कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 55 पैसे की कमी करके हमारे साथ मजाक किया है। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आ रहा है। हुकूमत को चाहिए महंगाई पर कंट्रोल करने के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी करके हमें रिलीफ फराहम करे। मजीद बता रहे हैं सादिकाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी। शहबाज, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 55 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 5 रुपए 31 पैसे की कमी कर दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के एक पेट्रोल पंप पर। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं जो पेट्रोल डलवाने आए। हम आपकी उनसे बात करवाते हैं, जानते हैं क्या कहेंगे हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। जी सर, ये हम यही कहना चाहेंगे कि पेट्रोल की मामूली कमी की है 55 पैसे और डीजल की 5 रुपए। तो ये हमारे साथ मजाक किया गया है, कोई कमी नहीं की और ये ज़्यादा हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दिया जाए और हुकूमत गरीब आवाम के साथ ताउन करे। क्या कहेंगे आपको इस वक्त वज़ीर आज़म देख रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब भी देख रहे हैं, तो क्या मुतालबा करेंगे? जी सर, ये हम यही कहेंगे कि हुकूमत को और वज़ीर आज़म पंजाब को यही चाहिए कि हुकूमत हमारे साथ ताउन करे और गरीब आवाम के लिए कुछ अच्छा से अच्छा बेहतर रिलीफ लेके आए। आज बिल्कुल जैसा कि आपने मेरे साथ मौजूद एक पेट्रोल पंप पर शहरी की गुफ्तगू सुनी, वो अच्छे खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत ने जो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 55 पैसे की कमी की है, ये हमारे साथ जो मजाक किया है। इनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आ रहा है तो कोई महंगाई की कमी करने के साथ साथ जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी करके हमें रिलीफ फराहम करे ताकि हम जो वो सुख का सांस ले सकें। जी, पत्तोकी के इलाके हुसैन खान वाला के निजी स्कूल में तकरीब तक़सीम इनेकाद का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा अपने फ़न का मुजाहरा किया और खूबसूरत टैबलोस पेश किए। स्कूल डायरेक्टर पत्तोकी मोहतरमा साइमा नईम का कहना था कि वो बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता करने के साथ साथ उन्हें हुनरमंद बनाने और बच्चों में छुपी काबिलियत को निखारने और बच्चों के एतमाद को बढ़ाने के लिए अपने स्टाफ के साथ मिलकर भरपूर कोशां हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी उस्मान पीरजादा का कहना था कि उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि छोटे से कस्बे में रहने वाले स्कूल इंतज़ामिया ने सिर्फ 1 साल के मुख्तसर अरसे में मेहनत और लगन से अपना लोहा मनवाया है। तकरीब में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और टीचर्स में शील्ड्स भी तकसीम की गईं। प्रोग्राम में शहजाद रहमत, आसिफ गफूर और बच्चों के वालिदैन समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद में CPO फैसलाबाद की हिदायत पर जराइम पेशा नाज़िर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ नईम सफ्तर। नईम सफ्तर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ज़िलाबाद में मनशियात फरोशों और नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। CPO फैसलाबाद की हदायत पर पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ थाना जात में कार्रवाई करते हुए 25 मुकदमात जो कि उनका अंदराज किया गया है और 25 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। मुल्ज़मान के कब्ज़े से 4 किलो 120 ग्राम चरस,
1130 ग्राम आइस और 378 लीटर शराब भी उनसे बरामद की गई है। नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ 17 मुकदमात का अंदराज किया गया है। इसी हवाले से हमारी CPO फैसलाबाद से बात हुई तो उनका यही कहना है कि मंशियात फरोशों और जो कि क्रिमिनल लोग हैं उनके खिलाफ मज़ीद घेरे को तंग करते हुए और मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। जी गुजरात RPO गुजरांवाला तैयबा हफीज़ चीमा सिविल सोसाइटी अंजुमन ताजरान के हमरा पतंगबाजी की रोकथाम के हवाले से चौक गुजरात से GTS से लेकर ईदगाह तक आगाही वॉक की मज़ीद अहवाल बता रहे हैं। गुजरात से हमारे नुमाइंदे मेट्रो न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर। जी राना, अब बताइएगा। जी, पतंगबाजों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है और इसी हवाला से आज गुजरात में रैली का निकात भी किया गया। मेरे साथ RPO गुजरांवाला मौजूद हैं, वो क्या पैगाम दे रहे हैं पतंगबाजों के खिलाफ, क्या एक्शन होंगे, जी बताइएगा सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम 2024 में भी और 25 में भी पतंगबाजी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन कर रहे हैं। 24 में हमने क्रैकडाउन किया, उसमें हमने 1.5 लाख पतंगें पकड़ी और हमने 30,000 के करीब जो है चरखी वो पकड़ी जिससे गला कटता है। तो ये मेरा वाज़े और ओपन और खुला पैगाम है लोगों के लिए कि ये पतंगबाजी से, इस खूनी स्पोर्ट से दूर रहें। ये कोई खेल नहीं है, जो उन तामीरी खेलों में हिस्सा लें। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक लेजिस्लेशन भी की है जिसमें लाखों रुपए जुर्माना है और जिसमें सजाएं भी सुनाई गई हैं। इसको बनाने वाले, इसको बेचने वाले, इसको उड़ाने वाले तमाम के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करेगी गुजरांवाला रीजन पुलिस और गुजरात रीजन पुलिस। लिहाजा इससे बच करें। मेरी वालिदैन से भी यहाँ गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को इस खूनी खेल से बाज रखें। जी बिल्कुल। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर दें आपको पाकपतन के नवाही इलाके टपीकाल वाली में डकैती की वारदात की। मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर लूट मार करके फरार होने में कामयाब हो गए। पाकपतन में डाकू काश्तकारों से लूट मार की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकू नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। देहाती फसल की देखभाल में मसरूफ थे कि डाकू ने गन पॉइंट पर लूट लिया। मुसल्लह डाकू असला लहराते मौके से फरार हो गए। थाना चक बेदी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। चनियो DSP ऑर्गेनाइजर क्राइम यूनिट महमूद अल हसन की सरबराही में पुलिस की जारिम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी। एक मुलजिम गिरफ्तार, 4 मुलजिम के कब्जे से 16 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट महमूद उल हसन की सरबराही में ASI नसरुल्लाह खान ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मोटरसाइकिल चोर मुलजिम के कब्जे से 16 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। गिरफ्तार मोटरसाइकिल चोर मुलजिम साजिद से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। मजीद इंकशाफात मुतवक्के। शहरियों की जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए ज़िला भर में अमली इक़दामात जारी हैं। ह्यूमन रिसोर्स और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर DC ऑफिस के कमेटी रूम में मेंबर कौमी असम्बली सदर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान खान दिरिशक की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर DC ऑफिस की कमेटी रूम में मेंबर कौमी असम्बली सरदार डॉक्टर हफीज़ुर रहमान खान दिरिशक की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली सरदार शमशेर खान मज़ारी, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सरदार खिजर हयात खान मज़ारी, सरदार शेर अफगान खान गोरचानी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अमजद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान मुमताज, मोहम्मद सिफातुल्ला, असिस्टेंट कमिश्नर जमील अहमद साकिब अदनान, डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद अदील और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। दौरान इजलास ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव्स जैसा कि धीरानी प्रोग्राम, किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, मिनॉरिटी कार्ड, हिम्मत कार्ड, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, रमजान और सहूलत बाजार
और दीगर की तफसीलात से आगाह किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अमजद ने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की भर्तियों बारे तफसीलात से आगाह किया। MNA सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान दरीशक और दीगर पार्लियामेंटेरियन ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी तरक्याती मंसूबों को दी गई मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ AD आमिर तहीम, मेट्रो 1 न्यूज, राजनपुर। कमालिया रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर ने म्यूनसिपल कमेटी लॉन में अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया। कमालिया रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और अफसरान को अपने मसाइल बताए। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने मौके पर मसाइल हल करने के अहकाम जारी किए। दुरुस्तगी रिकॉर्ड फ्रॉड का इजरा, इंतकालात का इजरा और रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का इजरा और रेवेन्यू से मुतालिका दीगर मामलात को कचहरी में कायम शुदा इंटरव्यूज़ पर फौरी हल किए जाएंगे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर का कहना था कि आवाम को फौरी इंसाफ और दीगर मसाइल हल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। लोगों ने मौके पर मसाइल हल करने पर असिस्टेंट कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी को हुकूमत की जानिब से अहसन इकदाम करार दिया जा रहा है। आरिफ वाला महकमा तालीम तबाही के दहाने पर तलबा की जाली रजिस्ट्रेशन, करप्शन स्कैंडल्स के बाद अब तालबात को तालीम देने के बजाय उनसे जबरी मुशक्कत का काम भी उरूज पर पहुंच चुका है। आरिफ वाला महकमा तालीम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दीगर जिम्मेदारान अफसरान की लापरवाही और मुबैना मिली भगत से महकमा तालीम तबाही के दहाने पर है। पिछले कई माह से मुख्तलिफ स्कैंडल्स की जद में है और तलबा की जाली रजिस्ट्रेशन, दर्जा शहारों की भर्तियों में बेज़ाब्तियों के बाद तलबा से जबरी मुशक्कत का काम भी उरूज पर पहुँच गया। चंद रोज़ कबल बच्चों से टीचर की दीवार बनवाने के वाक़े में मुतअद्दिद बच्चों के जख्मी होने के वाक़े के बाद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 69 EB में तालबात को तालीम देने के बजाय उनसे खाकरोब और किचन का काम लिया जा रहा है, जिस पर फौरी एक्शन लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक को दरख्वास्त जमा करवा दी है। मानावाला फैसलाबाद रोड नज़द खान प्लाजा रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 112 की इमदाद की टीमों ने जाँ बहक अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। फिरोजवाला शाहदरा मोड़ जोरदार धमाकों से गूंज उठा। मुसाफिर वैगन अड्डे पर खड़ी गाड़ी का गैस सिलेंडर फट गया। गैस सिलेंडर फटने से मुतअद्दिद गाड़ियों में आग लग गई। गाड़ियों को आग लगने से मुतअद्दिद गाड़ियों के गैस सिलेंडर्स भी फट गए और धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई, जिससे इलाके में खौफ व हिरास भी फैल गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान हमरा असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू मोहम्मद इकबाल का HPU बुनियादी मरकज़ सेहत 22/8 का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने स्टाफ की हाजिरी, इलाज और मुआवजा की सूरत हाल का जायज़ा लिया। BHU में अद्वियात की मौजूदगी, महफूज तरीक़ाकार का भी मुआयना किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हेल्थ सहूलियात की बासानी रसाई को यकीनी बनाया जाए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको खबर दें कि होड़ पक्का थाना सदर के इलाके में उबाशों ने अपनी ही अदालत लगा ली। नौजवान पर वहीमाना तशद्दुद किया, भवें और मुझे मुंह डाली और तशद्दुद करके वीडियो भी वायरल कर दी कि होड़ पक्का 5 मरला सकीम चा बम्बलवाला में उबाशों के एक गिरोह ने नौजवान पर तशद्दुद करके भवें और मुझे मुंह डाली। मुतासरा नौजवान मोहम्मद बिन्यामिन को ज़बरदस्ती पकड़कर उस पर जुल्म ढाया गया। एनी शाहिदीन ने मीडिया को बताया कि मुलजमान रस्सियों से बांध कर जुल्म करते रहे। मुलजमान ने न सिर्फ नौजवान को ज़दो
बेवकूफ़ किया बल्कि इसकी बेइज्जती के लिए इसकी भवें और मुझे भी मूंद डाली। मुतासर शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि अहल खाना और अहल इलाका ने मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब तलबा की हल्फ बर्दारी की रंगारंग तकरीब लगाई। मैरिज हॉल तलबा में मुनक़िद हुई तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी साबिक़ MPA पीर मुश्ताक अहमद खानेवाल जावेद फ़खरी, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल अब्दुल लतीफ़ अनवर साहब, सदर मरकज़ी अंजुम ताजरान तलबा मलिक फ़ौजी मंजूर अहमद, डॉगर सरदार सज्जाद अहमद डॉगर, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तलबा सिटी, सदर यूनाइटेड प्रेस क्लब सैयद अल्ताफ़ सब्ज़वारी, चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब तलबा हाफिज़ मोहम्मद नईम भट्टी, राना आमिर नसीर, राना इफ्तिखार और दीगर ने शिरकत तकरीब में की। राना मोहम्मद तारिक खान सदर और लाला सैफ हाकिम छीना जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। आखिर में सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल अब्दुल लतीफ़ अनवर ने मुंतखब अहदेदारान से हल्फ बर्दारी में हल्फ लिया। आखिर मलिक कौम के लिए सलामती की दुआ भी करवाई गई। रुक करेंगे साहिवाल का। साहिवाल महकमा एंटी करप्शन साहिवाल रीजन का करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। एंटी करप्शन साहिवाल रीजन ने इलाका मजिस्ट्रेट जुल्फ़िकार अहमद की ज़ेर निगरानी मुद्दई की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए THQ अस्पताल से अली उमैर को 10,000 रुपये रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ज़िला इंतज़ामिया का मुनफरिद कदम डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रज़ा की खुसूसी हिदायत पर सरदार पेट्रोलियम की जानिब से रमज़ान मुबारक के पुरमसरत मौके पर शहरियों को पेट्रोल और डीजल 3 रुपये फ़ी लीटर सस्ता मुहैया करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रज़ा की जानिब से सस्ता पेट्रोल डीजल मुहैया करने की ऑफ़र का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। शहरियों की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया और पेट्रोल पम्प इंतज़ामिया के अहसन कदम को खूब सराहा गया। खबर दें आपको घोटकी से, जहां रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की। हनी ट्रैप का शिकार होने वाले शहरी को अगवा होने से बचा लिया। घोटकी रेंजर्स और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई एक और मसनूई आवाज़ पर शादी करने वाले आशिक को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कच्चा के डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले पंजाब के शहर रहीम यार खान के नौजवान को बचा लिया गया। रेंजर्स तर्जमान के मुताबिक खुफिया इत्तला मिली कि एक शख्स पंजाब के शहर रहीम यार खान रिहायशी शहजाद अली वल्द नूर मोहम्मद को कच्चे के डाकुओं ने शादी और काम का लालच देकर सरहद शहर बुलाया है, जिस पर हमने सुबह से ही सरहद बस स्टॉप पर नाका लगाया और मुसलसल 7 घंटों के बाद मतलूबा शख्स बस से उतरा और इसे रिसीव करने के लिए आने वाले बाइक सवार रज़ा मोहम्मद वल्द गुल मोहम्मद गोट मौला बख्श पठान जहांपुर के रिहायशी समेत पकड़ लिया और दोनों अफराद को सरहद थाने पर पुलिस के हवाले कर दिया गया।